اور پھر ایسا تابعدار ہو کے زندگی بھر رہا کہ مسلمانوں کی فوج کی قیادت بھی کرتا رہا، اور زندگی بھر ایک انتہائی مخلص اور سچے مسلمان کی حیثیت سے طلحہ صدیق زندگی گزاری، لیکن شروع میں نبوت کے دعوے داروں کی فہرست میں نام لکھوا گیا اور حضور کی زندگی میں ایمان سے خالی ہو گیا اور صحابہ کے منصب سے بہت نیچے آ کے تابعین کے منصب تک پہنچ گیا۔ نبوت کے دعوے داری کی، لیکن فوراً توبہ طائب ہوا، استغفار کی، سچے دل سے رب سے معافی مانگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دو دعوے دار اللہ تعالیٰ نے دکھائے اور دونوں اپنے انجام کو پہنچے۔ اس کے بعد دعوے داری کرتے رہے، کئی لوگ آئے ان 14 صدیوں میں، 22-23 لوگوں نے نبوت کی دعوے داری کی۔ پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کی دعوے داری کر دی۔ یہ ایسے دھوکے باز اور فراڈیے لوگ ہیں مرزائی کہ دنیا کو یہ دھوکہ دینے لگے کہ اصل مسلمان ہم ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دین اسلام سے ان کا دور کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ان مرزائیوں کی حیثیت ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی نے پہلے اسلام کا خدمت گزار ہونے کی ناطے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مناظر اسلام، مصلح اسلام اور مجدد اسلام بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو اپنے اوپر دفاع کرنے کی کوشش کی اور مسیح اور مہدی اور مسیح ہونے کا دعوے دار بنا۔ آخر میں جا کر اپنے نبی اور رسول ہونے کی دعوے داری بھی کر دی۔ نبوت کی دعوے داری کرنے کی بنیاد پر وہ کافر ٹھہرا۔ پہلے وہ مسیح، مصلح اور مجدد اور مہدی ہونے کی دعوے داری کی بنیاد پہ گمراہ تو ہو چکا تھا، پھر کافر بن گیا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ایمان کو برباد کر بیٹھا، اور اس طرح دھوکہ دینے لگا جس طرح مارکیٹ کے اندر 1000 یا 5000 کا نقلی نوٹ چلتا رہتا ہے اور لوگ اس کو پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ ان اصلی نوٹ کی علامتیں اور نقلی نوٹ کی علامتیں ایک جیسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہر بینک کے اندر چھوٹے سے چھوٹے نوٹ سے لے کر بڑے سے بڑے نوٹ تک اصلی نوٹ کی ساری علامتیں بڑے بڑے بینرز پہ انہوں نے چھپوا کر لگا رکھی ہیں تاکہ ہر پاکستانی ان نوٹوں کی حقیقت کو پہچانے اور کسی نقلی نوٹ کے استعمال کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی طرح دین اسلام کی حقیقت بھی ہر مسلمان کے لیے جاننی اور پہچاننی ضروری ہے تاکہ ایسے دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آئے۔ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا لالا نبوت کا دعوے دار ہے، تو ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ ہوتا رہا ہے، اس کا بھی کوئی اپنا کلمہ ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگا ہمیں اپنے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اور پھر اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں کہ لفظ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے ایمان کی علامت جو کلمہ طیبہ ہے وہ پڑھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس طرح اصلی اور نقلی نوٹ پہ ظاہراً ایک جیسی علامتیں ہوتی ہیں، یہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے ناطے قرآن کریم کھول کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اگرچہ اللہ ان کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل جعلی نوٹ کی طرح ساری علامتیں مسلمانوں والی استعمال کر کے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کی محنتوں اور جد و جہد کے نتیجے میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اتنے بڑے شیخ الحدیث امام المحدثین نے حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے دست اقدس پہ بیعت کر کے انہیں ختم نبوت کے محاذ پہ اپنا امیر اور قائد تسلیم کرتے ہوئے ایک جد و جہد کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی۔ 1953 کی 52-53 کی تحریک چلی، اس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟
सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया, तुम इन 10,000 की बात करते हो, मैं कहता हूँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ शहीद होने वाले सहाबा से लेकर क़यामत तक जितने लोग ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में जान कुर्बान करेंगे, सब के खून का ज़िम्मेदार और जवाबदेह अल्लाह की अदालत में अताउल्लाह शाह बुखारी होगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी की क़यादत में उलमा ने मेहनत की और 1974 में कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाए। हज़रत सैयद यूसुफ़ बेनूरी रहमहुल्लाह की क़यादत में, फिर हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब की क़यादत में 1984 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके नतीजे में कादियानी कलमा तय्यबा पढ़ के अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते, कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अपने किबला रुख होकर मुसलमानों के सामने नमाज नहीं पढ़ने का हक़ नहीं रखते, कादियानी कुर्बानी करने का हक़ नहीं रखते। यानी वो सारी अलामतें जो हकीकत में इस्लाम के अलामतें हैं और मुसलमानों के मुसलमान होने को ज़ाहिर करती हैं, वो कादियानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में और चंद एक ममालिक में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इसके बावजूद भी कादियानी दुनिया भर में मुसलमानों को धोखा देने में मसरूफ़ हैं। मैंने शुरू में कहा, हुज़ूर ने फरमाया ज़माना करीब हो जाएगा, आज ज़माना करीब हो चुका है। आज इस मीडिया के ज़रिए से दुनिया भर में कहीं पे बैठा हुआ इंसान दुनिया के किसी खित्ते के इंसान से रब्ता भी कर सकता है और उसकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। इब्तिदात की कारगुजारी में एक ये कारगुजारी भी सामने आई कि एक बंदा मस्जिद में दर्स कुरान शरीफ सुनने आया करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दर्स सुनना छोड़ दिया। हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने उससे पूछा कि आजकल आप दर्स में नहीं आ रहे, क्या वजह है? कहने लगा, अपने घर में ही दर्स सुन लेता हूँ। घर में कैसे सुनते हैं जी? घर में हमारे यहाँ भी कई मजहबी शख्सियात आती हैं, दर्स देती हैं टेलीविज़न के ऊपर, मैं वही सुन लेता हूँ। मुफ्ती साहब कहते हैं, महीना डेढ़ दो बाद एक दिन अचानक मैं उनके घर गया कि मैं भी देखूँ ना किसका दर्स सुनते हैं। जब देखा तो वो मिर्ज़ा मसरूर लांती का दर्स सुन रहे थे। इसलिए दजल कादियानियत इस मीडिया के ज़रिए से, दजाली फितने के ज़रिए से घर घर पहुँचा हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि बस्ती बस्ती, करिया करिया, हर मुसलमान बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरत तक, शहरी से लेकर देहाती तक, गरीब से लेकर अमीर तक, बेरोज़गार से लेकर रोज़गार वाले तक, सबके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि बुनियादी अक़ाइद से आगाही भी हो और अपने नज़रियात से वाक़फ़ियत भी हो। कादियानी कभी भी उस आदमी पे अपना जाल नहीं फेंक सकते जिसका अपना अकीदा मजबूत होगा, उलमाए कराम से उसका ताल्लुक़ और रब्त होगा, मस्जिद के साथ उसकी वाबस्तगी होगी, इस्लामी तालीमात का असर उसकी ज़िंदगी में नुमायाँ होगा। कादियानी कभी भी उस पर अपना जाल नहीं फेंक सकते, अगर कोशिश की तो इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मस्जिद मस्जिद, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये मेहनत आम हो जाए। पहले मरहले में मसाजिद के अंदर दर्स, मस्जिद में आने वाले नमाजियों तक आगाही फराम करना, और फिर अगले मरहले में उन लोगों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद भी शामिल है जो मस्जिद से दूर हैं, मस्जिद के साथ उनका रिश्ता कटा हुआ है, हालांकि वो भी हमारे भाई हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, आपकी उम्मती हैं, आपकी इज़्ज़त और नमूस का मसला आए, भले वो मस्जिद ना आए, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। सबके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इसमें हमारी चाहत तो ये है कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, पीर तरीक़त राहबर शरीयत, आलमी मजलिस ताक़त ख़त्म नबूवत के पाकिस्तान के दुनिया भर के अमीर हज़रत पीर नासिरुद्दीन हक़वानी दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमाए कराम का हर मस्जिद, हर बस्ती, हर मस्जिद, हर मोहल्ले में बयान हो, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि उनके कंधों पर न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है। इसलिए वो साल में 1 या 2 दिन एक एक ज़िले को इनायत करते हैं। चुनांचे 21 अगस्त 2022, आज से ठीक 61 साल पहले 1961 में
21 अगस्त 1961 को हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बानी पहले अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह का यौम वफ़ात भी है। दोनों तरीक़े इत्तफ़ाक़ से इकट्ठी हो गई तो हमने अपनी कॉन्फ्रेंस को बायात अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी कर दिया, जिसकी सदारत अमीर मरकज़िया हज़रत अमीर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत पीर नासिरुद्दीन हक़वानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदारत फरमाएंगे। और शहीन ख़त्म नबूवत फ़ातिह रब्वा हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, कायद खैबर पख्तूनख्वा हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन पुरकुज़ई साहब, हमारे आलमी मजलिस के मरकज़ी नाज़िम इरशाद मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान सानी साहब और हमारे रईसुल मुनाज़िरीन मरकज़ी मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना राशिद मदनी साहब इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ खुसूसी तौर पे आपको कॉन्फ्रेंस की दावत देने के लिए। 21 अगस्त को एक दिन ज़ोर से लेकर मगरिब तक इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में एक दिन ख़त्म नबूवत के नाम इंशाअल्लाह सब एक दिन ख़त्म नबूवत के नाम करते हैं जी इंशाअल्लाह। सब का इरादा है, ज़रा हाथ खड़ा करके तईद करते हैं इंशाअल्लाह सब उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। सिर्फ अकेले नहीं आएंगे, उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है कि हर इमाम मस्जिद अपने साथ अपने तमाम मुक्तदियों को साथ लेकर तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, अपने जवानों को अज़ीज़ व अक़ारिब को बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी होगी, कीमती बयानात भी इस्तेमाल फरमाएँगे, अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, मुस्तक़बल में ईमान की हिफाजत भी होगी और बड़ी बरक़ात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह ख़त्म नबूवत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई है, या अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह हमारी कमी कोताही को मुआफ़ फरमा दे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद को कोशिश को हमारे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बना दे। या अल्लाह हमारे हज़रत शाह साहब दीगर उलमाए कराम जितने यहाँ बुज़ुर्ग बच्चे मौजूद हैं सबकी ज़िंदगी में उम्र में वक्त में बरकतें अता फरमाए। या अल्लाह सबको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए, सबकी ज़रूरतों को अपने ख़जानों से पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो दुआ मांगी है इसे भी कबूल फरमा ले, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी अच्छाई और भलाई की दुआएँ मांगी है या अल्लाह उनमें से हमें भी हिस्सा अता फरमाए। जिन जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम नेक लोगों ने पनाह मांगी है या अल्लाह उनसे हमें भी पनाह अता फरमाए।